warm welcome to yet another episode of Get Set Grow Season 2, your own YouTube podcast show presented to you by Young Mind Things. So we are covering different walks of life ताकि आपको एक holistic picture दे इस particular season में. And इसी idea को carry forward करते हुए we have Dr. Parul Sood as our guest of honor for today's episode. Now, Dr. Parul Sood अपने बारे में तो बताएंगी, पर उसके पहले I just read out a short introduction before I hand over the stage to Doctor and you get to know her better. You know, Dr. Parul is a classical practitioner of homeopathy who has completed 1.5 decades of committed service to the society for an effective cure. She is a distinction holder in Bachelor's of Homeopathic Medicine and Surgery from Homeopathic Medical College, Chandigarh. She completed her post-graduation from Hahnemann College of Homeopathy, London, UK in 2020. She is certified in pediatrics, diet and nutrition. She specializes in lifestyle disorder. Lifestyle disorder या lifestyle हम सभी की बेकार है, so that should catch your attention here because it caught my attention. आज नहीं, बहुत पहले उसकी भी story मैं बताती हूँ. She is specialized in lifestyle disorder and gynae problems and guides patients with healthy lifestyle and diet options to further support their healthy routine. You see, she's interested in healthy well-being. She also has attended Sadhguru's inner engineering course, and I think that is a very profound, a very deep course, है ना? Yeah. Her selfless service at Hope for Hopeless camps, NCR, has benefited needy patients enormously. Dr. Parul has been practicing classical homeopathy since 2007. Her hands-on experience in her private clinic and her understanding of human nature adds to the experience provided by the vast patient populace from different walks of life. From common cold to diabetes, hypertension, renal failure, infertility, PCOD, allergic asthmas, and many more such diseases, she treats all possible patients who are curable through medicine. She has truly etched herself as a person whose responsibility towards society has ushered in a vast response from all those who have benefited from her noble services. So that is Dr. Parul Sood for you. Conversation with her has taught me so much about my own self and about humanity in general, about biology, psychology, human nature, and whatnot. And that is why she is the best person to address today's topic. And here we go with revealing today's topic. So today we are going to discuss about health for youngsters, relevance, importance of health for youngsters, and how this health is connected to our behavior. So with that, I hand over the stage to you, Doctor. Please go on and describe your journey and how relevant is this particular topic in your journey. Thanks, Yashika, for such a warm welcome. To start with my journey, I will start that both my parents were from this medical field only. My father being an allopath and mother is a homeopath. And quite often I used to have a conversation with them then about how both these pathies complement each other. What in early days I used to see, like my father used to have a very good skills in treating the emergency cases, used to have a very empowerment over the how to use the diagnostic tool for the prognosis of disease, using of the anatomy and conjointing with the physiology and having a diagnosis of disease. But what was very powerful and what was very fascinating for me was that in homeopathy, there's amalgamation of both body, mind, and soul. The treatment is from the root of the disease. Even in the genetic disorders, the results are very good. It works on autoimmune disorders and very much. So my take was to why not to opt for this pathy, which has something higher. And something very minute I should tell you, the founder of the homeopathy himself was an allopath who then shifted and then founded homeopathy. So it goes up one hand upper. And regarding that, every time there was discussion regarding health, how it should be managed and all. So my interest was more toward how to manage the health, how to contain it, like that. That's very good to hear. I really didn't know. मेरे को बिल्कुल भी idea नहीं था कि the father of homeopathy, he himself was an allopath. Yes. तो is it कि बचपन से because you saw this medical environment घर पे, क्या तभी you had thought कि you'll become a homeopathic doctor? हाँ, एक हेल्थ को लेके कहते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर लाइफ में है तो हेल्थ है, क्योंकि अगर आपने वो अचीव कर लिया, वहां पे आप स्टेबल हो गए, तो बाकी सारे गोल्स साइड बाय साइड पूरे होते रहते हैं. अगर हेल्थ डिटोरेट हुई तो आप कोई भी अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे. That is very right. And I remember आपने यही चीज मेरे को बहुत बार समझाई and बहुत patiently समझाई. एक
एक चीज़ जो मैंने देखी है, जो यूजुअली बिकॉज़ अपने होम्योपैथी के बारे में बताया, आप होम्योपैथ खुद हो, तो एक परसेप्शन है होम्योपैथी को लेकर कि ये जो मेडिसिन्स हैं, दे एक्ट वेरी स्लो, बहुत टाइम लगता है इन्हें एक्ट करने में। सो हाउ डू यू सी दिस एंटायर परसेप्शन एज़ अ होम्योपैथ योरसेल्फ? ओके, होता क्या है, जब भी एक कोई पर्सन आपके पास आया, ठीक है ना? वो किस स्टेज में आया, इट डिपेंड्स। लाइक मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा-सा और एक्सप्लेन आउट करती हूँ। हमारी डिजीज़ेज़ जो होती हैं 7 लेयर्स में वॉक इन करती हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब भी कोई फर्स्ट डिज़ीज़ हमारी बॉडी में आएगी, तो वो स्किन लेवल पे आती है। सेकेंडली जब वो सप्रेस कर दिया जाता है, तो वहाँ पे वो आता है रेस्पिरेटरी, आपका और जीआईटी ट्रैक अफेक्ट होता है। थर्ड, इट गोज़ टू बोन एंड मसल्स एंड जॉइंट्स। देन कम्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, योर हार्ट इज़ अफेक्टेड। आफ्टर दैट योर एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अफेक्टेड। एंडोक्राइन सिस्टम में आपका डायबिटीज़ आ गया, थायराइड आ गया, डिजीज़ ऑफ पिट्यूटरी आ गया, पीसीओडी आ गया। आफ्टर दैट व्हाट इज़ अफेक्टेड, योर नर्वस सिस्टम इज़ अफेक्टेड। एंड देन कम्स द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जिस लेवल पे हमारे पास पेशेंट आ रहा है, वहाँ से हमें नीचे लाना है उसको। ठीक है? पूरा डिटॉक्सिफिकेशन किट करना है। और ये पैथी एक बहुत माइल्ड पैथी है, ठीक है? जो भी उसके सोर्सेज़ हैं, जो भी उसके मेडिसिन रिसोर्सेज़ हैं, वो बहुत माइल्ड है, तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं प्रोड्यूस होते। तो इस तरह से एक एग्रेसिव तरीके से वर्कआउट नहीं होता, बहुत माइल्डली इफेक्ट होता है मेडिकेशंस का। अगर आपकी बॉडी बहुत प्योर लेवल पे चल रही है, आपका जो बैलेंसिंग सिस्टम है, आपका जो कहते हैं ना कैनवस जिस पे हमने ड्रॉ करना है, अगर वो बहुत क्लियर है, तो रिजल्ट्स विल कम इन मिनट्स। और ये मैंने खुद अपनी लाइफ में इस चीज को देखा है। कैसे देखा है? सिंस चाइल्डहुड आई वाज यूजिंग द होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि एज एज अ होम्योपैथ मैं बहुत से एक एलिमेंट से गुजरी। जैसे कि अगर मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में बताऊं कि एट सम टाइम ऑफ लाइफ आई हैड अ पैरालिसिस ऑफ माय लेग, देन आई हैड सम ligament tear, which is totally a surgical disorder. Okay. Then recently I was diagnosed with some bilateral cervical rib. ओके, एंड उसमें क्या होता है बायलैटरल सर्वाइकल रिब में, आपकी जो सर्वाइकल रिब से जितनी है, जितने स्पेस में है, उसमें एक एक्स्ट्रा एडअप हो गई, तो एक रेगुलर कॉन्टिन्यूशन प्रेशर रहता है, जिस वजह से नमनेस आ जाता है और पर्सन हेड भी होल्ड नहीं कर पाता, इतनी वीकनेस आ जाती है। ठीक है? तो ये सब अगर मैं इसमें अगर मुझसे कोई मिले, तो नो बडी कैन टेल कि मैंने ये सब सफर कर चुकी हूँ। और इमोशनल ट्रॉमास अलग हैं, जो टीनेज में हम हर पर्सन अपने लाइफ में आते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए। आई हैड अ टाइम व्हेन आई बुलीड वेरी फिर बॉडी शेमिंग भी मैंने आउटकम वो किया। तो ठीक है, ये सब से अगर हम निकले हैं, तो ये सारा इसमें होम्योपैथी ने हेल्प आउट किया। अभी भी जो कैटर ऑफ पॉपुलेशन होम्योपैथी को सिंस चाइल्डहुड ले रहा है, उनमें रिजल्ट्स बहुत फास्ट रहते हैं, क्योंकि बॉडी क्लीन होती है, कोई सप्रेशन नहीं होती। उसमें हमें क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, वहाँ हमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। दैट्स क्वाइट ट्रू, दैट इज़ ट्रू। इसलिए मैं अभी इसी से कनेक्ट कर रही थी कि जब मैंने देखा, जब मैं खुद आपकी क्लिनिक पर आई हूँ एंड जब कोई भी क्लिनिक पे आते हैं, तो usually what happens is कि you or any other homeopath for that matter, you inquire about everything कि लाइफ में क्या चल रहा है, यस। फ्रेंड्स है, सोशल सर्कल है, स्लीप पैटर्न्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, सो the medicines are connected to everything that यस, way. एवरीथिंग। क्योंकि हम जब हम केस स्टडी करते हैं, या हम किसी पेशेंट का इन होता है, तो हमें उसके फिजिकल जनरल्स के साथ, मतलब फिजिकल मेकअप के साथ साथ उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, बॉडी टाइप क्या है, उसका हेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आई कलर क्या है, ये सब सारा फिजिकल में आ जाता है। देन सेकंड वी गो इन द मेंटल स्टेट, किस तरह का मेंटल स्टेट चल रहा है, क्या वो पर्सन इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, इमोशनल बैलेंस किस तरह से क्या सेंसिटिविटी है, किस तरह से सिचुएशन को रिएक्ट कर रहा है। ऑल दैट कम टुगेदर एंड देन वी सिलेक्ट अ मेडिसिन। Quite true. So यानी कि क्या आपके, because you also said कि जब हम 7 लेयर्स की बात करते हैं, कि अलग-अलग लेयर्स पे डिसीजेस होते हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम एक पर्टिकुलर लेयर है, जिसमें कि हार्मोन्स भी आ जाते हैं सारे। तो यस। जो हमारे हार्मोन्स है, इज इट पॉसिबल टू हैक आवर हार्मोन्स वाया होम्योपैथिक मेडिसिन्स? यस, व्हाई नॉट? जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो हम वहीं पे तो उस सिस्टम को सेटल आउट कर रहे हैं, बैलेंस्ड आउट कर रहे हैं। तभी हम उस डिजीज से उस पर्सन को निकालेंगे। जब तक बैलेंसिंग नहीं होगी, हम उस पर्सन को नहीं निकाल सकते डिजीज से। लवली, मेरे को अब सब कुछ समझ आ रहा है कि अबाउट all the medicines that I've had, and this is something we all need to understand, I think, guys, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये जो 7 लेयर्स वाली बात बताई डॉक्टर ने, और अभी तक जितनी भी चीजें बताई है, दे आर वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड दे आर वेरी न्यू फॉर अस टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर ओन बॉडीज। सो डॉक्टर, व्हेन आई टॉक अबाउट हेल्थ फॉर यंगस्टर्स एंड हाउ इट्स कनेक्टेड टू बिहेवियर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में, बिफोर आई मूव ऑन टू द जनरल क्वेश्चंस फ्रॉम यंगस्टर्स, ये एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि क्या कभी ऐसा आपने आपके साथ हुआ है खुद, या फिर आपने अपने किसी पेशेंट के साथ होते हुए देखा है कि प्रॉब्लम्स, बट बिहेवियर
क्या बिहेवियर किस तरीके से ठीक किया जा सकता है हेल्थ को ठीक बिहेवियर करके? कैसे ठीक करते हैं? हाँ, देखो कुछ चीज़ें हमारे हैंड में होती हैं, लेकिन कुछ हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन बहुत माइल्ड है, हम उसका माइल्ड नेचर नहीं चेंज कर सकते। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो कई बार कहते हैं कि भई वो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरी सेंसिटिविटी खत्म कर दो, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दो, वो नहीं हो सकता है। वो आपका जेनेटिक कोड है। अगर वो जेनेटिक कोड डिज़ीज़ कॉज़ कर रहा है, तब हम उसको करेक्ट करेंगे। लेकिन वो जेनेटिक कोड को वैसे हम ठीक नहीं करते। ठीक है ना? हम लेकिन क्या करते हैं, हम रिएक्शन लेवल कम कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ। किसी सिचुएशन में किसी पर्सन को गुस्सा आया, ठीक है? एंगर आया, एंगर ठीक है, गुस्सा हम सबको आता है, नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में उसको इतना एंगर आ गया जो एक लेवल ऑफ रेज पे चला गया जिसने दूसरे पर्सन को हार्म कर दिया, देन इट इज अ डिजीज। कोई भी आपका नेचर एक इंटेंसिटी से जब ज्यादा चला जाता है या बहुत लो चला जाता है तो वो डिजीज फैक्टर में आता है और वहां हम क्योर करते हैं। जैसे कि अगर आप इरिटेट हो रहे हो किस चीज से, ठीक है, इरिटेट हो रहे हो, थोड़ी बहुत हम जैसे वर्क कर रहे हैं, हम इरिटेट हो गए कि भाई साउंड, आवाज मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेकिन एक लेवल ऑफ इरिटेशन इतना आ जाए कि आप टॉलरेट ही ना कर पाओ हाई साउंड्स को, तो वो एक डिजीज लेवल पे आ जाते हैं। तो वो हमें बैलेंस आउट करना पड़ता है, उसको करेक्ट करते हैं हम लोग। हम नेचर नहीं चेंज करते किसी का, हम बस उसको बैलेंस्ड आउट करते हैं। दैट दैट वाज़ ग्रेट टू नो। तो बैलेंस आउट करने में तो करेक्ट रेक्टिफाई करने में, बैलेंस आउट करने में डिफरेंस है ना, आपको पता है वेयर टू रेक्टिफाई एंड वेयर टू यस। बैलेंस इट आउट। So that was great to know, lovely. And इसी के साथ guys, my questions are over. Now we are moving on to some general questions from youngsters जो कि इस particular topic के around revolve करते हैं। And इन्हीं में से काफी ऐसे questions होंगे you will relate with, so just stay tuned here, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है, इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया where there are thousands of experts online, experts, quote unquote, experts online, and they are talking about what is healthy, what is not healthy, how not to be misled by it and follow what's good for you. Basically, हम Instagram पे चले जाए, हम कहीं भी चले जाए, we see so many reels, we see so many people who project to be experts in medical field and they are giving all sorts of medical advices. तो ऐसे केस में how to not get misled by such information? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक नॉलेज आपको अपनी बॉडी के बारे में होनी चाहिए, जिससे कि आप उस चीज को एक हायर एजुकेशन या हायर नॉलेज में गेन कर पाओ। सेकेंडली, जब भी आप स्टडी मटेरियल कहीं से पढ़ रहे हो, गो फॉर द ट्रस्टेड सोर्सेज सच एज गवर्नमेंट अप्रूव्ड या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड रिसोर्सेज पे वहां जाओ, जिससे कि आपको एक कंप्लीट और राइट नॉलेज मिले। फिर आप किसी अगर पर्सन को फॉलो कर रहे हो, यू शुड नो दैट इज द पर्सन इज रजिस्टर्ड, इज ही लाइसेंस्ड विद द डिग्री। अगर वो हम किसी पे बोल रहे हैं, किसी बात को बोल रहे हैं, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है, ये हमें चेकआउट जरूर करना चाहिए। ठीक है। फिर एक अगर हम, ठीक है, जितनी भी नॉलेज हम गेन कर लें इंटरनेट से, समथिंग से, लेकिन जो प्रोफेशनलिस्ट होता है, उसका जो एक एक्सपीरियंस होता है, हर चीज को उसने देखा होता है किस तरह से वर्क कर रही है वो, क्योंकि कई बार देखो साइंस इज समथिंग जो हर डे चेंज हो रही है। आज आएगा कि कीटोन डाइट अच्छी है, सेकंड डे आ जाएगा कि नहीं, इससे ये हार्म हो रहा है, ये बेनिफिट हो रहा है। तो जो एक प्रोफेशनलिस्ट है उसके पास वो एक पूरा डाटा एक साथ कलेक्ट होता है। ठीक है ना? तो उसको रेफर करना वो एक ज्यादा एक अच्छी ऑप्शन रहती है जब आप इस तरह के कोई प्रोग्राम या कोई डाइट एंड ऑल पे फॉलो करना चाहो, कोई हेल्दी हैबिट्स में फॉलो करना चाहो। ठीक है। देन अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूँ, मार्केट में आजकल बहुत सप्लीमेंट्स आ गए हैं। वी शुड सी कि दो सप्लीमेंट्स या वो चीजें हैं एफडीए अप्रूव्ड होनी चाहिए। ओके, दिस वी कैन सी। और कोई भी ऐसा सोर्स जो बता रहा है कि क्विक फिक्स होगा, डोंट गो फॉर दैट। क्योंकि जो चीज को डिटोरेट होने में सालों लग गए हैं वो एक दिन में फिक्स नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो ये चीजें होती हैं। अगर इन रेड फ्लैग्स को देख लें तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, हमें कहाँ चूज करना है और कहाँ पे हमें बैकआउट कर जाना है जिस तरह से। परफेक्ट, आपने हमें 3 रेड फ्लैग्स दिए, आई जस्ट पैराफ्रेज इट। सबसे पहले अ, अच्छा, सबसे पहले नहीं, मैं लास्ट से स्टार्ट करती हूँ। लास्ट फर्स्ट वन कि क्विक फिक्स किसी भी चीज़ का नहीं होता है। जिसको सालों लगे डिटीरियोरेट होने में, वो एक दिन में फिक्स नहीं होता है। सेकंड कि एफडी अप्रूव्ड होना चाहिए एंड थर्ड कि जो एक लाइसेंस है, वो होना चाहिए उस इंसान के पास। लाइसेंस और रजिस्टर्ड होना चाहिए पर्सन जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो। जिसको भी हम फॉलो करें वो उस फील्ड में लाइसेंस्ड एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। सो दीस आर द 3 अ, कोई भी ग्रीन। आप हाँ, कोई भी, हाँ, कहीं भी हाँ, एजुकेशन, अगर कहीं से आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, दैट इट शुड बी फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से या किसी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन को फॉलो करता हो, तो वहां से हमें इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। कभी हम अगर ऑनलाइन ट्रस्टेड पढ़ रहे हैं किस चीज के बारे में, या trusted sources. So these 4 flags we need to look for. These 4 green flags actually यस। we need to look for. Thank you so much for answering that question so wonderfully, Doctor. Second question is, since health and behavior are interconnected and the way we feel about our body also influences our mood, and for that we tend to go to extreme diet plans. जैसे overeating या skipping meals, excessive physical activity in order to feel healthy. What do you think about that? Is that right or not? कि देखो हाँ, जहाँ हम, हाँ, डाइट की अगर बात करते हैं, तो डाइट एक तो बैलेंस्ड होनी चाहिए।
ठीक है ना? उसमें अगर हम ले रहे हैं तो सब कुछ एवरीथिंग शुड बी होल फूड। हर फ्रूट आना चाहिए, हर वेजिटेबल आना चाहिए, होल ग्रेन्स आने चाहिए, सीज़न्ड होने चाहिए आपके जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है? वी शुड बी हाइड्रेटेड एंड अगर हम उसकी प्रिपरेशन की बात करें तो एवरी मील व्हिच इज़ स्मॉल प्रिपरेशंस हमेशा अच्छी होती हैं, होममेड प्रिपरेशंस अच्छी होती हैं और हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है? हम कहाँ जाते हैं, हम कहाँ पे लैक करते हैं, हम जब डाइट करते हैं, हम पैकेज्ड फूड को नहीं ओमिट करते, हम रिफाइंड फूड को नहीं ओमिट करते। ठीक है ना? हम कहाँ लैग कर जाते हैं, हम लोग सब कुछ अगर फ़ॉलो कर रहे हैं, पोर्शन पे नहीं कॉन्संट्रेट कर रहे होते हैं। पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोर्शन कैसे हम मैनेज करेंगे? हम जब भी खाना खा रहे हैं, हमें अपनी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करना चाहिए। मैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे हम कुछ भी च्यू कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, सबसे पहले जब हम खाने को देखते हैं, हमारा आधा एपेटाइट वहाँ खत्म हो जाता है। जब हम उसको बहुत अच्छे से देखते हैं, हमारी एक विज़ुअल एपेटाइट होती है, जो पूरी होती है उस समय। दूसरा आता है हमारा स्मेल। हम खाने के समय जब उसकी स्मेल लेते हैं, तो वो एक हमारा सेंसरी, हमारा नेसोफेरेंजियल एपेटाइट को कम करता है। फिर आता है हमारा टेस्ट। टेस्ट करते समय हमें कहते हैं कि हमें इस तरह से खाना चाहिए कि हमें उसके अंदर हर इंग्रीडिएंट का हमें पता चले कि उसमें क्या डला हुआ है। इतने प्रॉपर्ली अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करके उसे च्यू करना चाहिए। हमें फिंगर्स का उसके टेक्सचर को फ़ील करना चाहिए खाते समय। जब हम इन सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करके खाते हैं तो एक तो हम पोर्शन रिड्यूस कर पाते हैं। दूसरा हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। आजकल क्या प्रॉब्लम आ गई, हम ज़्यादातर जब भी खाना खा रहे होते हैं, हमारा टीवी चल रहा होता है या मोबाइल फ़ोन हमारा हैंड में होता है। इससे क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आती है, हम बिंज ईटिंग में चले जाते हैं, ठीक है? एक्सेसिव उसमें एपेटाइट्स में चले जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आता है क्योंकि हमारा एक जब हम खाना खा रहे होते हैं, हमें एक हार्मोन गर्लिन हार्मोन होता है जो लिबरेट होता है, जो हमारे माइंड को इंडिकेट करता है कि हाँ, हमने खाना खा लिया। प्रॉब्लम क्या होता है इस हार्मोन के साथ, वो इमीडिएटली नहीं लिबरेट होता। जब आप खाना खा लेते हो, आफ्टर 5 मिनट्स वो लिबरेट होता है। अब वो 5 मिनट्स को हम देते नहीं हैं। हम खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, हमें लग रहा है कि अभी हमारा एपेटाइट फुलफिल हो जाएगा, अभी नहीं हुआ, अभी खाना है, अभी खाना है। लेकिन जब तक हमें लगता है तब तक ओवर ईटिंग हो चुकी होती है। तो इसलिए खाना खाते समय जब भी आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो, आपको नेक्स्ट आपने मील लेना है, नेक्स्ट चपाती लेनी है, हमें लेना चाहिए ठीक है, 1 लेनी है तो हाफ ये मैं बता रही हूँ जो लोग वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है ना? वेट लॉस जर्नी में जाना चाहते हैं, हाउ दे कैन प्रैक्टिस दैट। 1 करना है, हाफ कर दो। आपको पता लगेगा हाफ में ही आपका एपेटाइट फुल हो गया। ठीक है ना? एंड एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। ये नहीं कि हमने ये ओमिट कर दिया इतने टाइम के लिए, ये ओमिट कर दिया। हाँ, हम फॉलो करते हैं, हम ओमिट ऑफ डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर डिजीज़ में फॉलो करते हैं। किसी को रीनल स्टोन्स हैं, तो हम उसमें ऑक्ज़ैलेटिक डाइट बंद करेंगे। किसी को डायबिटीज़ है, तो हम नो डाउट रिफाइंड शुगर और उस पे वर्क करेंगे। ठीक है? लेकिन एक हेल्दी ह्यूमन की बीइंग के साथ हमें सब कुछ लेना है, हमारी बॉडी को सब कुछ रिक्वायर्ड होता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, कहाँ प्रॉब्लम आता है हमारा, हमारा सर्कैडियन रिदम कैसे हम डिस्टर्ब करते हैं। हमारा बॉडी का एक बॉडी क्लॉक होता है। जैसे ही सन आता है, हमारा बॉडी क्लॉक स्टार्ट होता है, हमारे कुछ सर्टेन हार्मोन्स लिबरेट होते हैं बॉडी के अंदर और जैसे ही सनसेट होता है हमारे वो हार्मोन्स डिप आउट कर जाते हैं। अगर हम इस टाइम क्लॉक को मेंटेन करेंगे तो हमारा वेट लॉस जर्नी बहुत हमें हेल्प आउट करता है। अदर देन क्या होता है, अगर हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम लेट नाइट खाना खा रहे हैं, तो हमारे उस समय इंसुलिन लेवल्स जो होते हैं बहुत हाई पीक पे होते हैं। हमारे फिर वो प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ क्रिएट होती है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती है, आप डायबिटीज में चले जाते हो, ये डिजीजेस आ जाती हैं आपके अंदर। ठीक है ना? तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर आ गया। कैसे बिहेवियर आ गया कि अपने आप को कंट्रोल करना है। ठीक है ना? क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से डिसिप्लिन सेट आउट करना है, वो सब यहाँ पे कनेक्टिविटी आ जाती है। That was a superb answer, doctor. And इसी के follow up में मेरी एक query है. You covered this particular thing of weight loss, right? यप। हम्म। Okay, there are two follow-ups. I'll just ask the first one पहले. So weight loss का ये है, when we talk of people who want to gain weight, who feel कि they are हम्म। too lean, because हम्म। personally that has always been a problem with me, and I've seen many people who have this problem. So in case people want to gain that weight in order to get that ideal, quote unquote, ideal body, तो उनके लिए what do you suggest? देखो, आप अगर हेल्दी हो देन इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है ना? आपके लुक्स, आपका बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। कुछ लोग आपने कहा सुना होगा कि हम लोग इतना ले खाना नहीं खा रहे लेकिन एकदम से हमारा फैट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हम इसको और तरह से समझे, हमारी बॉडी शेप्स में स्क्वायर होता है, पियर शेप्ड होता है, एप्पल शेप्ड होता है। ठीक है ना? ये सब हमारा कनेक्टेड होता है जेनेटिक कोड से। हम कहाँ फोकस करना है, हम हेल्दी है नहीं है, क्या हम अपनी डेली एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर रहे हैं, हम कितनी जल्दी, हमारा स्टेमिना क्या है, हम कितनी जल्दी बीमार हो रहे हैं, हमें वहां फोकस करना है। ठीक है ना? ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में यही आएगा कि आपको सर्काडियन रिदम फॉलो करना है, आपने स्लीप को बैलेंस करना है, आपको डाइट लेते समय पोर्शन कंट्रोल करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, एवरीथिंग विल बी सेम। Great, great. And मेरा second follow-up ये है, when we talk of the body clock, waking up हुँ, with the sun and sleeping with waking up with the sunrise, sleeping with the sunset. तो आज के डेट में तो it's very difficult to follow. It's just there are people who do that. And मैं बात कर रही हूँ अपने जैसे लोगों की, and especially youngsters, because we are the kind of people जो रात के 2 बजे तक, sorry, सुबह के 2-3 बजे तक जगे रहते हैं with our assignments and everything, with our Netflix का series. तो ये बॉडी क्लॉक हम कैसे फॉलो करें? बॉडी क्लॉक कैसे चले? देखो,
अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, तभी आप उसे अप्लाई करते हो। ठीक है ना? आज तक शायद बहुत लोगों को इस पॉडकास्ट में नहीं पता हो कि बॉडी क्लॉक कैसे वर्क करती है। हम अगर अपनी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करेंगे, हम कोई भी हेल्दी ईटिंग कर लें, हम एक्सरसाइज़ेज़ कर लें, लेकिन हम डिज़ीज़ में आएँगे ही आएँगे। क्योंकि जो बेसिक सिस्टम है, वहाँ पे हम फोकस नहीं कर रहे। और रिपरकशंस फिर हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है ना? अगर हम कुछ गलत करें, तो उसके रिपरकशंस हमें करने पड़ेंगे। इसलिए एक विज़डम्ड डिसीजन लेना चाहिए कि क्या हमारी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए हमेशा लाइफ़ में। ठीक है ना? हम हमेशा किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। आजकल जो कल्चर आ गया है कि हम भाग रहे हैं। हम सब एक रैट रेस में हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ करना है। ठीक है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर ये बॉडी ही फिट नहीं रहेगी, क्या आप उस चीज़ को यूज़ भी कर पाओगे? उसको, उस हैप्पीनेस को, उस अचीवमेंट को आप यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? हम कितने लोगों को देखते हैं कि बहुत अच्छा इनकम सोर्स है, बहुत अच्छा मनी बैकअप है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। लेकिन क्या? बीमार है। सारा मनी कहाँ जा रहा है? आपकी डिजीज पे जा रहा है। तो इट्स बेटर ना कि थोड़ा रहो, सैटिस्फाइड रहो विद दैट और प्रायोरिटी सेट करो कि हाँ भाई ये मेरे को सेट करना है। सबको चाहिए लेकिन हेल्थ को हमें कैसे सेट आउट करना है सबसे पहले। माय गॉड, गोल्डन वर्ड्स जो नहीं भूलने चाहिए। जो आज का पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर देम, आई एम वेरी श्योर. And if you are watching this podcast, you know, and the fact that you are here till now in this podcast shows that you are benefiting from it. So just carry on, watch it till the end because और भी कई सारी बातें होने वाली है. With that, we are moving to the next question जो youngsters में आता है. It is pretty much connected to this particular question only जो हमने अभी पूछा. ये क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंगस्टर्स टू टेक साउंड डिसीजंस फॉर देयर हेल्थ एंड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीयर प्रेशर अराउंड देम? आपने इसके बारे में हल्का सा बोला, पर टिपिकली पीयर प्रेशर ऐसा है, सोशल मीडिया कल्चर ऐसा है, जीरो फिगर ऐसे आइडियलाइज किया जाता है कुछ बॉडी टाइप्स को, कुछ फिगर्स को, कि बहुत प्रेशर होता है आसपास. तो देखो, हाउ डू वी डील विद इट? हाँ, कहाँ प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। हमें एक्सेप्ट करना है हाउ वी आर। अगर ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो हम स्टैंड आउट कर पाएंगे। दूसरा आता है कि देखो, पीयर प्रेशर तो हमेशा रहेगा। आप ये मत सोचो कि यंगस्टर लाइफ में रहता है। आप जैसे जैसे एडल्टहुड में जाओगे वहां भी एक पीयर प्रेशर रहता है। आप वर्किंग में आओगे वहां भी एक पीयर प्रेशर रहेगा। जिस सोसाइटी में मूव ऑन कर रहे हो वहां पे पीयर प्रेशर रहेगा आपका। ठीक है ना? तो उसको डील और मैनेजमेंट मुझे लगता है यहीं से सीख लेना चाहिए हमें, क्योंकि एक जो यूथ है हमारा वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट। ठीक है ना? ये ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे हम जितने अपनी लाइफ स्किल्स सीख लेंगे वो हमें एक लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में हेल्प करता है। तो सबसे पहले आता है कि हमें बहुत होना चाहिए, सेटल आउट होना चाहिए कि किस चीज के लिए हमें नो बोलना है। ठीक है ना? ये नो वर्ड जो होता है हमें सीखने में बहुत देर लग जाती है। जहाँ बेसिक प्रॉब्लम आता है, हमें समझ नहीं आता कि हम चीज़ों को कैसे बैलेंस आउट करें। तो पावर ऑफ नो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो, जो भी उसका आउटकम आएगा, जो उसका रिज़ल्ट आएगा, वो आपको ही बेयर अप करना पड़ेगा। आपकी जगह दूसरा बेयर अप नहीं करेगा उस रिज़ल्ट्स को। हेल्थ खराब होएगी, जो भी प्रॉब्लम आएगा, आप डिज़ीज़ में जाओगे, उसकी वजह से जो भी डिप्रेशन होगा, एजुकेशन लॉस होगा, वो सब आप बेयर करोगे, दूसरा पर्सन बेयर अप नहीं करेगा। तीसरा, जहाँ माइंडसेट की बात आती है, वहाँ ये भी आता है कि कई बार हम अलोन हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार वी आर द लूज़र, वी आर नॉट लूज़र, वी आर द लीडर ओवर देयर। ओके? हमें प्रैक्टिस करना चाहिए जो हम प्रीच कर रहे हैं। जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि नॉलेज हमने एक्वायर करी, ठीक है ना? उसको स्टार्ट अप्लाइंग दैट, क्योंकि वो जब एप्लीकेशन में आता है, वो जो रिजल्ट आता है, उसके बाद आप स्ट्रांग इनफ हो जाते हो अपनी बात को सामने रखने के लिए। तो वो एक आपको स्टार्ट आउट कर देना चाहिए अभी से, क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है। अभी से स्टार्ट करेंगे तो वी विल बी फुल फ्लेश्ड ओवर देयर। और अगर मैं इससे बात कर रही हूँ तो मैंने इसमें से आधी बातें कम से कम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस जरूर करी है, और इसलिए मैं इस बातों को बोल रही हूँ। आई नो कई बार मेरी डिस्कशंस होती थी अपनी मदर के साथ कि मॉम, राइट पाथ को चूज करना, आप कहते हो राइट पाथ चूज करो, ठीक है ना? कई बार कहते हैं कि नहीं, राइट डिसीजन लो, राइट डाइट सेलेक्ट करो, अपना सब कुछ राइट प्रिंसिपल्स फॉलो करो। ईजी नहीं होता। तो व्हाट वर हर वर्ड्स की जो राइट पाथ होता है वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसका आउटकम हमेशा बहुत अच्छा होगा। जो ईजी पाथ होता है वो बहुत ईजी होता है, रॉन्ग पाथ जो होता है बहुत ईजी होता है, लेकिन उसका आउटकम हमेशा गलत होगा। तो हमें आउटकम पे फोकस करना चाहिए, हमें एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, और शायद वहां से हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हमें किस तरह से वर्कआउट करना है। ठीक है ना? मेरे ख्याल से ऑल दिस विल हेल्प। लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, हमें प्लान आउट करना चाहिए। हम बाहर जा रहे हैं, इस तरह से प्लान आउट करो कि आप कुछ मील पहले ले लो, ठीक है? और देन यू कैन हैव सम डेजर्ट और सम स्मॉल मील। तो उसमें क्या होता है, आपने सोसाइटी को भी नहीं छोड़ा, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं छोड़ा, और आपने अपने, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होता है लेकिन यू कैन मैनेज इट। ठीक है? और जब आप एक गुड डिसीजन लेते हो, या तो लाइक माइंडेड पीपल में आ जाओ, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूशन, हर पर्सन, जैसे मैंने कहा, कुछ तो एग्रेसिव पर्सनालिटीज होते हैं, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज होते हैं। वो उनके लिए नो कहना बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नो बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो उनको अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे चैलेंज आउट करना चाहिए कि किस तरह से, सारी सर्कमस्टांसेस में नो नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ कुछ जगह स्टैंड लेना सीखें अपना।
इवेंचुअली वो एक पावर एक अंदर इनबिल्ट हो जाती है। बहुत ही अच्छा आंसर था ये। आपने इतने सारे पॉइंट्स दिए, मेरे को पैराफ्रेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत ही पॉइंट वाइज़ इतने अच्छे तरीके से इलैबोरेट करते हुए सबको समझाया और इतने प्यार से समझाया है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो सबको ग्लूड रखेगा इस एपिसोड के लिए। गाइस, आई होप यू आर टेकिंग डाउन नोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड। एंड वन्स अगेन प्लीज़ गेट सेट करोगे किसी भी एपिसोड को देखो, नोटपैड, पेन लेकर देखो। स्पेशली ऐसे एपिसोड्स जो इतने इन्फॉर्मेटिव होते हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है, साथ में एनर्जी भी इतनी मिलती है। आई कैन फील योर एनर्जी here, and I'm sure everyone who's here with us watching this conversation will feel that energy. On that note, मेरा एक छोटा सा फॉलो अप है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेकर कि हम कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। वी नीड टू वर्क आउट एवरी सिंगल डे फॉर आवर हेल्थ, राइट, टू कीप आवर सेल्व्स फिट। लेकिन साथ ही में ऐसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं बॉडी इमेज को लेके कि हमें पता भी नहीं चलता और हम उस सोसाइटल इमेज में फिट होने के लिए, जैसे बॉयज सिक्स पैक बनाने के लिए वर्कआउट करने लग जाते हैं, गर्ल्स उस जीरो फिगर के लिए, या गर्ल्स को भी मसल्स चाहिए, जो भी सोसाइटल इमेज है जिनको भी फॉलो कर रहे होते हैं अपने रोल मॉडल को, हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने लिए वर्कआउट करने के बजाय उस सोसाइटल इमेज में फिट होने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। तो वो कैसे उस चीज में डिफरेंशिएट किया जाए? देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना चाहिए वो क्रिटिसिज्म आ कहाँ से रही है। क्या वो ट्रस्टेड सोर्स से आ रही है? जैसे क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ, पीसीओडी केसेस में जाते हैं, ठीक है? पीसीओडी केसेस में हम कहते हैं कि भाई आपको वेट लूज करना ही करना पड़ेगा। इट्स नॉट फॉर दैट कि हम एक बॉडी शेम कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि जैसे ही वो अपना वेट लॉस करेंगे, उनका इंसुलिन हार्मोन बैलेंस अप होगा, वो डाइट फॉलो करेंगे, अपना जितना भी जंक फूड अगर छोड़ते हैं वो लोग, क्योंकि आप डाइट मैनेजमेंट में ही सब आ जाएगा, तो आप जैसे ही जंक फूड छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी और आप मेडिसिन को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे, आपके हार्मोन्स जल्दी बैलेंस होंगे। तो ये देखना है कि हमें कहाँ से आ रहा है क्रिटिसिज्म। अगर वो क्रिटिसिज्म किसी ट्रस्टेड सोर्स पे है तो आप उस पर वर्क करो, ठीक है ना, क्योंकि वो एक रिफॉर्मेशन लाएगा, आपके अंदर कुछ अच्छा ही बिल्डअप करेगा, ठीक है। और अगर वो एक सब गलत जगह से आ रहा है तो फिर उसको एक ईयर नहीं देना चाहिए वहां पे, ठीक है। यू शुड डिफरेंशिएट। दूसरा आ जाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने, कई बार हम स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर फिक्स आउट कर देते हैं, ठीक है ना, और हम अपने आप को डिट्योरेट करने देते हैं, ठीक है। हर पर्सन की बॉडी, उसके, वही ना, एक इन डेप्थ जब नॉलेज होती है कि हाँ ठीक है, एक एक्सेप्टेंस आ गई, ओके, और उसके बाद जब हम वर्कआउट करते हैं तो एक वो नॉलेजेबल चीज वर्कआउट करती है। इस तरह से नहीं कि हम लोग बिल्कुल इसे कभी कुछ लोग स्टार्व आउट कर लेते हैं बिल्कुल थिन आउट होने के लिए, ओके। तो क्या है, वो न्यूट्रिशनली आप लो चले जाओगे, आपके एनर्जी लेवल्स लो चले जाएंगे, आप कहीं भी परफेक्ट नहीं होगे, ओके। आप अपने अच्छे क्लोथ्स में तो फिट इन हो रहे हो, लेकिन क्या आप उस स्टेट में हेल्दी हो? आप अगर डिजीज चीज की तरफ ही मूव ऑन हो रहे हो तो क्या हेल्थ अचीव हुई? कुछ हेल्थ नहीं अचीव हुई। तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं डिसीजन ले रही हूँ, क्या वो करेक्ट है मेरी हेल्थ के लिए, मेरी बॉडी के लिए। Great. Awesome answer. Super awesome. Thank you so much for answering that question so patiently, doctor. इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन आता है कि again a general question जो youngsters में कि as the stress levels are at peak among the youth, especially during exam time, they somehow get trapped by various health issues. So how do we deal with that? Basically exam के time पे जो stress होता है उसकी वजह से तबीयत खराब हो जाती है बहुत ही बुरी वाली। तो how do we deal with हाँ, that? देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आनी चाहिए आपको। मैं उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताती हूँ। हम दो तरीके से बताते हैं। हम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेट करो, लेकिन हर पर्सन के लिए मेडिटेट करना पॉसिबल नहीं होती। बहुत से लोग बताते हैं कि मेडिटेशन होती कैसे है, हमें तो समझ ही नहीं आता इस चीज़ के लिए। तो उसके लिए एक सेकंड ऑप्शन है हमारे लिए, बहुत ईजी ऑप्शन है। हमें एक एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी है। एब्डोमिनल ब्रीथिंग में क्या होता है, आपकी बॉडी को अपने इरेक्ट रखना है और अपने एब्डोमेन पे हैंड रख के हमें देखना है कि हमारा पेट से हम सांस ले नहीं ले रहे, हमारा पेट अंदर बाहर जाना चाहिए, लेकिन हमारी चेस्ट की पोजीशन बिल्कुल स्टिल होनी चाहिए। दैट इज द एब्डोमिनल ब्रीथिंग, ओके। कैसे वर्कआउट करती है एब्डोमिनल, क्योंकि अगर हमें रीजन होगा तब इस चीज को हम फॉलो अप कर पाएंगे। हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं एक सर्टेन लेवल के बाद हमारी बॉडी में से अल्फा वेव्स निकलने लगती है। अल्फा वेव्स में क्या होता है, ब्रेन जब अल्फा वेव्स निकल जाता है तो हमारा ऑटोमेटिकली स्टैमिना लो चला जाता है। हम जो भी पढ़ रहे हैं, हमारे कई बार बताते हैं कि हम ब्रेन फैग में चले गए, हमारा माइंड कुछ ले नहीं रहा है, हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे माइंड के अंदर नहीं जा रहा। तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से काम करती है। आप 45 मिनट्स का एक स्टडी गोल अपना सेट करो, या कोई भी टाइम, जैसे कई बार हम इनिशियल बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं तो 20 मिनट्स का गोल होता है या 15 मिनट्स का गोल होता है। जब आपको लगे नहीं अब मेरा ब्रेन फैग में जा रहा है, डू द एब्डोमिनल ब्रीथिंग फॉर 5 मिनट्स। और 5 मिनट्स की ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या करता है, ये अल्फा वेव्स को कन्वर्ट कर देता है बीटा में, और बीटा में आते ही आपका माइंड बहुत अलर्ट हो जाता है। माइंड अलर्टनेस के आप फिर रिफोकस कर सकते हो। हम क्या करते हैं, हम ब्रेक्स लेते हैं, हम लेते हैं ना ब्रेक, हम क्या करते हैं, हमने थोड़ा सा मोबाइल देख लिया, थोड़ा सा घूम फिर आए, बातें कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, टाइम
आपको एक तो ना टाइम का परसेप्शन रहता है, ठीक है, और उससे कोई एनर्जी गेन नहीं होगा। यहाँ पे एनर्जी गेन नहीं होता। तो अपना एक सिस्टमाइज आउट करना चाहिए, क्लॉक सेटिंग करनी चाहिए कि कितने टाइम बाद मुझे ब्रेक लेना है। और उस समय आपके पास वी शुड से कि फोन और कोई टेक्नोलॉजी पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको सबसे बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट को अपने से दूर रखना चाहिए। वहां पे भी अगर मैं बात करूं, तो जो एक्सट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो बहुत इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन पे चले जाते हैं। अपने बारे में इसलिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता होगा कि हाँ मैं एक्सट्रोवर्टेड हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल फील होता है सोसाइटी में, आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल हाई होगा, तो उसके लिए पहले ही जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो अपना डिस्ट्रैक्शन लेवल दूर रखो। यू कैन अवॉइड कि हाँ भाई, अब मैं पढ़ रही हूँ 45 मिनट्स के लिए, मेरा एक स्टडी पैटर्न है, तो उसमें बाहर रहेगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से प्लान आउट कैसे करना है, आपको अपना डे प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट डे के लिए पहले से नाइट में प्लान आउट होना चाहिए कि किस तरह से आपने अपने चैप्टर्स को खत्म करना है, कितना चैप्टर्स आपने खत्म कर देने हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा। ये जो प्लानिंग होती है ना, ये बहुत हमें हेल्प करती है, और इस पे स्टिक आउट जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने प्लान आउट करा और अगले दिन सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। थर्ड डे अपना थर्ड चीज मैं कहूंगी, क्लॉक नहीं खराब करनी चाहिए। मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपका, मैं आपको इसमें थोड़ा सा आपको हेल्थ के बारे में बताती हूँ कि जब हम मॉर्निंग में 6 o'clock उठते हैं, 6 o'clock हमारा कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई होता है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। अगर हम उससे पहले उठ जाएं, जैसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं कि 4 बजे से पढ़ो 6 बजे तक, तो आपका जो भी आप रिसीव करोगे वो एक हाई इंटेंसिटी पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस समय आपका कॉर्टिसोल लेवल लो होता है। आप जब भी पढ़ाई करोगे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, और स्ट्रेस में आपका रिसीविंग पावर अच्छा होता है, आप जो भी याद कर रहे हो आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये ब्रह्म मुहूर्त को आपको यूटिलाइज करना चाहिए। फिर हम कहते हैं रात को, अब पेरेंट्स तो बोलते थक जाते हैं कि भाई रात को जल्दी सो। क्यों रात को हम कहते हैं जल्दी सोने के लिए? उसका रीजन बताती हूँ मैं आपको। जो हमारा स्लीप है वो हमारी हीलिंग है बॉडी की। जब हम सो रहे हैं, और टाइम मैं आपको बता दूं, आप जितनी जल्दी सो जाते हो, आप 9-10 बजे अगर सो रहे हो, तो उस समय 9 से 12 में जो आपकी स्लीप होती है वो डबल द टाइम होती है। मतलब अगर 9 से 12 में हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो डबल हो जाएगी स्लीप। इसलिए हम कहते हैं 9 से 10 में सो जाओ और ऊपर से सुबह 4 बजे उठ जाओ। तो उसमें आपका हीलिंग कंप्लीट हो जाती है बॉडी की। और उसी के साथ हमारा मील टाइम भी करेक्ट हो जाता है कि किस समय हमने मील लेना है, ठीक है ना। फिर हमें एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़नी। क्यों नहीं एक्सरसाइज छोड़नी? अब क्या होता है, रेगुलर हम पढ़े जाते हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे कुछ जो एसेंशियल हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो डिप कर जाते हैं। जैसे कि हमारा डोपामिन है, हमारा सेरोटोनिन है, ऑक्सीजन लेवल है, या एंडोर्फिन्स हैं, वो सब डिप कर जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस जो है वो इसे इंक्रीज कर सकता है। आजकल लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं कि कुछ हमें ऐसा सब्सटेंस मिल जाए जिससे हम अपने एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करें। जो सब्सटेंस अब्यूज में आता है, जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं बच्चों में, राइट तरीका उसको सेटल आउट करने का ये है कि जब आप एक्सरसाइज करोगे, बॉडी ऑटोमेटिकली एक हेल्दी हार्मोन सिक्रीट करेगी, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करेगी, और वो हैप्पीनेस के साथ आप अपने गोल को बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। क्योंकि ज्यादातर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं इस समय। एग्जाम प्रिपरेशन आया, स्ट्रेस लेवल आया, डिप्रेशन आया, मैं करूंगी नहीं करूंगी, एंग्जाइटी आया, फियर आ गया, मल्टीपल इश्यूज आते हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज से बैलेंस आउट कर सकते हैं। और डाइट डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करता है। जब हम जंक फूड में जाते हैं, तो जंक फूड में जैसे ही हम जाएंगे, हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट तो पूरा हो जाता है। जैसे हमने एक डाइट कवर करनी है, हम इतनी ही कैलोरीज ले सकते हैं, हमारा एब्डोमेन, पेट का साइज तो नहीं बढ़ेगा ना, हम उतना ही न्यूट्रिशन ले सकते हैं। जब वो न्यूट्रिशन हमने एक ले लिया एक जंक फूड से, तो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट खत्म हो गया, हमें कुछ भी एक नरिशमेंट नहीं मिली बॉडी के अंदर, तो एनर्जी लेवल्स वैसे डिप अप हो जाएंगे, डिप डाउन हो जाएंगे। तो उसको भी मेंटेन कर लेके हमें डाइट भी हेल्दी लेनी है। तो मेरे ख्याल से मैंने आंसर कर दिया इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बिल्कुल आपने बहुत ही मस्त तरीके से आंसर किया इस क्वेश्चन को भी, जैसे आप पहले के क्वेश्चन्स आंसर कर रहे हो। मेरा एक अगेन आई हैव अ वेरी स्मॉल क्यूरियोसिटी व्हिच इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट वन, बिकॉज़ या आई नो कि पीपल हू आर वाचिंग दिस उनकी एज ग्रुप क्या है, वो या तो हाई स्कूल में होंगे या स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे। यूजुअली ऐसे लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारा कंटेंट देखते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हेन वी टॉक ऑफ डाइट, ठीक है, सो द किड्स हू आर एट होम, उनको तो चलो बना बनाया मिल जाता है सब कुछ, ठीक है। दे जस्ट नीड टू हैव अ नाइस टॉक विद देयर मॉम्स, विद देयर गार्जियंस। तो जो बच्चे हु आर इन हॉस्टल या हु आर इन पीजी, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास बस पैक के पैक मैगी रखे होते हैं, या फिर बेसिकली ओके, पैकेज्ड फूड होता है या कप नूडल्स होते हैं, तो वो अपने डाइट का ध्यान कैसे रखें? हाँ, ओके, ये आती हैं क्वेरीज, बहुत जनरल क्वेरीज आती है मेरे पास। देखो, सबसे पहले हम कैसे काम कर सकते हैं, थोड़ा सा अपस्किल जरूर करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि एट द एज ऑफ 14, 15, 16 आप अगर अपनी बॉडी का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप कुछ भी नहीं मैनेज कर पाओगे, ठीक है ना। तो उस मैनेजमेंट में क्या आना चाहिए, थोड़ा सा किचन बेसिक आपको जरूर आना चाहिए। बेसिक में क्या आता है, अगर हम बात करें, अब देखो, हमें कहाँ से फूड चाहिए, हमें 3 टाइम का मील मिलता है, अगर हम होस्टलर हैं तो हमें 3 टाइम का मील मिलेगा। अब हमें किस चीज़ों को ठीक करना है, हमें अपनी स्नैक्स को ठीक करना है, और एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन में अब हम कहें हमें जंक ही खाना है, नहीं, हम जंक की क्या अच्छी ऑप्शंस ऑप्ट आउट कर सकते हैं, वो मैं बताती हूँ। देखो, हमारी डाइट में फ्रूट्स जरूर होने चाहिए, सीजनल फ्रूट्स जरूर होने चाहिए, ठीक है ना, हम उसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं।
और आजकल मैं आपको बताऊँ जिस टाइम से हम लोग निकले, हमने हॉस्टल लाइफ देखी है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी और अब की जो फैसिलिटीज़ लेवल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव हो चुका है। ठीक है ना? तो आपको इस चीज़ को मैनेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। आप अपना डेयरी का इंटेक ठीक रखो। तीसरा आता है आप अपने सैलेड्स रख सकते हो, आप अपना रॉ वेजिटेबल्स रख सकते हो। चौथा आता है आप नट्स और सीड्स पे काम कर सकते हो। नट्स एंड सीड्स कैसे काम करते हैं मैं इसका आपको बताती हूँ। क्या होता है हम ज़्यादातर ये एक मिथ होता है कि हमें फैट्स नहीं लेने, ठीक है ना? फैट हमारी बॉडी के लिए खराब होता है। ऐसा नहीं है, फैट बहुत एसेंशियल होता है। बहुत सारे बॉडी में पूरी बॉडी में बहुत जगह फैट होता है जो हमें इंजरी से हमें बचाता है, ठीक है ना? तो फैट्स कैसे नहीं है, हमारे अगर हमारे साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाए, जो एक फैटी पार्ट आता है, तो क्या हो जाता है आप अर्थराइटिस में चले जाते हो, ठीक है ना? तो बहुत जगह पे आपकी फैट की रिक्वायरमेंट भी उतनी रिक्वायर्ड होती है। फैट्स के साथ आपके सारे फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे ए, डी, ई के वो डिसॉल्व होते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है किस-किस तरह से वर्कआउट करते हैं सिस्टम के अंदर। आप फैट्स लोगे ही नहीं, तो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन एब्सॉर्ब भी नहीं होगा बॉडी के अंदर। तो ये जो आपका विटामिन्स और मिनरल्स का खेल है, वो यहाँ पे सारे फैट्स जो होते हैं आपको नट्स से और सीड से मिल सकते हैं। ठीक है ना? उसको जब आप सोक आउट करते हो, ओवरनाइट सोक करते हो, मॉर्निंग में इसको वाटर ड्रेन कर देते हो। हम क्यों इस टेक्निक को सिखाते हैं बच्चों को कि जब आप ड्रेन आउट करते हो, वाटर ड्रेन आउट करते हो, तो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एनहांस हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हम ज़्यादा नट्स में बात करते हैं, तो हम बात करेंगे कि आलमंड से हमें क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। नहीं, प्रोटीन मिल जाएगा, उससे ज़्यादा हम बात नहीं करते। लेकिन आलमंड्स हैं, कैश्यूज़ हैं, आपके वॉलनट्स हैं, उसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपका जिंक है, कोबाल्ट है, सेलेनियम है, कॉपर है, ये भी मिलता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आपका आयरन है, ठीक है ना? आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी चाहिए। ठीक है? तो अगर हम उन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे तभी हमारा आयरन एब्सॉर्ब होगा, तभी हम एनीमिया से निकल पाएँगे। तो इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नेचर जो है बहुत हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसने जितना आयरन प्रोडक्ट बनाया है ना नेचर में, उस सबके साथ विटामिन सी डालती है, अगर हम उसको करेक्टली खा रहे हैं तो। ठीक है? तो इस तरह से हम बैलेंस आउट कर सकते हैं अपनी डाइट को। क्योंकि ये सब तो अवेलेबिलिटी मिल जाती है हमें, 3 टाइम का खाना मिल गया और फिर हमें ऑप्शंस आ गए। फिर हम स्नैकिंग में क्या कर सकते हैं? स्नैकिंग में अगर हम देखें, हम अब देखो कहीं न कहीं यहाँ पे एक फैमिली सपोर्ट अगर हमें मिलता है, तो हम घर से बहुत सा एक प्री प्लान्ड मील्स अपने साथ लेके जा सकते हैं। जैसे पंजीरी के लड्डू हैं, मखाने हैं, पीनट्स हैं, गुड़ की गज्जक है, ये सब कोई कुछ भी बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना? हम जब बात करते हैं शुगर में, हम सिर्फ रिफाइंड शुगर की बात करते हैं। क्योंकि जब भी किसी चीज़ की रिफाइनिंग हो जाती है, तब उसका न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाता है। एज़ सच शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी भी चीज़ को लिमिटेड टेक अगर हम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो इस चीज़ से हम अपनी स्नैकिंग को कवर आउट कर सकते हैं। एंड आपने तो कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। तो ये प्रॉब्लम मेरे दिमाग में है बिकॉज़ मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, मैं देख रही हूँ। अच्छा हॉस्टल में तो आपने बोला आई एम सो सॉरी मैं इस चीज़ को हाँ, एक्ज़ैजरेट नो कर रही हूँ प्रॉब्लम हाँ। बट बिकॉज़ आई नो दिस इज़ अ वेरी प्रेसिंग प्रॉब्लम। ठीक है? स्पेशली आई थिंक फॉर द पीपल हू आर इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वहाँ पे हॉस्टल में सीट्स बहुत कम है, ओके? तो हुँ, हॉस्टल में उतनी अकोमोडेशन नहीं है सो पीपल हैव टू लिव इन पीजीज़ एंड हुँ, यूजुअली हुँ, क्राउडेड पीजीज़। ठीक है? हुँ, तो हुँ, ऐसे पीजी में जहाँ पर किसी तरीके से हम लोग रह रहे हैं, अपने एक्स्ट्रा ओवरलोडेड असाइनमेंट्स पूरे कर रहे हैं, क्लासेस भाग-भाग के अटेंड कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है पीजीज़ में बिकॉज़ काफ़ी पीजीज़ में तो खाने की भी फैसिलिटी नहीं है। हुँ, हुँ। फूड 3 टाइम मील फैसिलिटी भी नहीं है। तो अगेन आपने उसका आंसर दिया, अपस्किल खुद को करना है। स्टिल अगर कुछ आप इस पे इनसाइट्स दे पाओ तो? क्या एक देखो डायटीशियन को इनसाइट कंसल्ट करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को? देखो डायटीशियन को आप नो डाउट मिल सकते हो अगर किसी प्रॉब्लम को फेस आउट कर रहे हो। ठीक है ना? हम डायटीशियंस के पास जब जाते हैं लेकिन एक जो नेचुरल रेगुलर डाइट है वो तो हमें उसके लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। वही ना प्रायोरिटी सेट। आपको जब पता है अब हम टाइम निकालते हैं, हम नेटफ्लिक्स के लिए भी टाइम निकालते हैं, हम फ्राइडे मीटिंग्स के लिए भी टाइम निकालते हैं, है ना? तो अगर हम वहाँ पे थोड़ा-सा क्रंच आउट करके टाइम प्लानिंग आउट अच्छा इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एक आइडिया देती हूँ। प्रॉब्लम पता है क्या आता है? प्रॉब्लम आता है प्लानिंग में। अगर हमें किचन मिल रहा है पीजी में, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपको प्री प्लान्ड रहना चाहिए। आपको अपना 1 वीक का प्लानिंग कर लेना चाहिए कि किस समय क्या आप बनाओगे और उस अकॉर्डिंग आपकी ग्रोसरी क्योंकि एक ही दिन में आप प्लानिंग कर लेते हो, आपका ग्रोसरी आ गया उस अकॉर्डिंग, वो टाइम सेविंग हो गया। और जब आपको पता होता है कि हाँ, मुझे इस तरह से प्लान आउट करना है, मुझे मॉर्निंग में ये बनाना है, इवनिंग में ये आपका डिनर ही होगा, तो प्लान्ड मील के साथ आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। आप ये वर्कआउट जल्दी हो जाता है। और हम अगर बात करें चॉपिंग एंड ऑल की तो मार्केट में बहुत बेस्ट चॉपर्स आ गए हैं जो बहुत अच्छा टाइम सेव करते हैं। ठीक है ना? और उस अकॉर्डिंग हम कोई फैंसी फूड आइटम नहीं आना, हमें बेसिक दाल, चावल, रोटी बनानी आनी चाहिए। ठीक है ना? और उससे हमारा काम ईज़ी हो जाता है। ये बेसिक आना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि अगर हम अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं तो सबसे पहले इनको तो मजबूत करना ज़रूरी है ना। ठीक है ना? क्योंकि ये एक वे लॉन्ग हमें लेके जाएँगे। दैट इज़ लवली। अब आपने एकदम मतलब पूरी प्रॉब्लम होलसम तरीके से सॉल्व कर दी। एंड वन्स अगेन थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए। गाइस पता है डॉक्टर इज़ वेरी, वेरी पेशेंट
शी हैज ऑलवेज बीन वेरी पेशेंट विद मी विद माय क्वेश्चंस, एंड अब ये जो जनरल क्वेश्चंस हमें मिले यंगस्टर्स में से जिनमें मेरे भी फॉलो अप्स आ रहे हैं, वो भी डॉक्टर इज आंसरिंग सो पेशेंटली. वी हैव लास्ट टू क्वेश्चंस, ठीक है? उसके बाद we'll move on to the fun part. So Okay. the second last question is कि how can parents understand the reason for poor behavior of their children as affected as how can parents unravel that the reason for poor behavior of their children can be some underlying health issues instead of simply making them understand that they should act like this or that? How can they act as a support system? Basically, parents कैसे समझ सकते हैं this connection between the Yes. behavior of their kids and their health? ओके, यहाँ पे पेशेंट्स जो पेरेंट्स हैं बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. एक तो हमें ना ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए बच्चों के साथ हमेशा. ओपन कम्युनिकेशन में है कि मैं आपकी बात ही पूरी तरह से सुन रही हूँ और आप भी मेरी बात पूरी तरह से सुनो. ठीक है, एंड टू एंड नहीं होना चाहिए कि आप भी चाहो कि ठीक है हम जो बोल रहे हैं वही सुन रहे हैं. इसमें कई बार हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स के. ठीक है, दूसरा आता है, और क्योंकि हर बिहेवियर एक कॉज के साथ रिलेटेड है. अगर बच्चा टेम्पर टैंट्रम्स कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें फियर है, कोई एंग्जाइटी है, कोई इनसिक्योरिटी है, जो हमें फॉलो आउट करना है कि वो कहाँ डीप रूट कॉज कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ये बिहेवियर एमर्ज हो रहा है. तभी हम उस पर काम कर पाएंगे और उसके लिए कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है. दूसरा, पेशेंट हियरिंग होनी चाहिए. क्योंकि जब भी बच्चे पेरेंट्स के पास बात करने आते हैं, कई बार यहाँ पे लैक कर जाते हैं हम एज अ पेरेंट, क्योंकि एक प्रेशर जो है वो किड्स के साथ साथ आजकल पेरेंट्स के ऊपर भी आ गया है. ठीक है ना, तो वहाँ पे प्रेशर कहाँ पे आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ गई है लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा आधा टाइम खा जाती है. तो एक टाइम जरूर डिवोट करना चाहिए. व्हाट आई प्रैक्टिस कि इट्स वेरी स्पेसिफिक कि जब हम अपना डिनर करेंगे, क्योंकि मैं तो आफ्टरनून में भी घर आती हूँ, तो आफ्टरनून लंच या डिनर करेंगे, उस टाइम पे फोन नहीं होता मेरे पास. उस समय जो टाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अपनी डॉटर के साथ होता है. और मुझे पूरा पूरा टाइम बताएगी, पूरा डे के बारे में बताती है कि स्कूल में क्या हुआ, और कई बार अगर कुछ टॉक्स रह गए तो इवनिंग में नाइट टाइम में मेरे से डिस्कस करेगी. वो 2 टाइम अपने बच्चे को कंसिस्टेंटली देने चाहिए. और अगर कुछ वो बच्चा बोल रहा है तो उसे पेशेंटली हियर आउट करें. फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स पेरेंट्स भी अपने आप को नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं कि कहाँ से अगर कोई एक चेंज इन बिहेवियर वो नोटिस आउट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सीरियसली लेके, अगर वो नहीं हेल्प आउट कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनलिस्ट के पास जाके वहां से हेल्प आउट ले सकते हैं कि क्या एक चेंज आ रहा है, कैसे ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हम इसको सॉल्व आउट करें. Beautiful, beautiful answer. I think that was definitely a bulb on, and thank you so much for this answer, Doctor. We are moving to the last question, which is general amongst youngsters with relation to health and its effect on our behavior. So, the last question says the youth today is facing maximum health problems, especially because of mental health problems like loneliness, depression, and so on and so forth. How can we bring it to a lower edge? And is behavior of today's youth the cause of such problems, or their behavior is just a burst out due to their health problems? ओके, मैं मेरे ख्याल से मैंने इसको कहीं कहीं बहुत जगह पॉइंट आउट कर दिया है इस चीजों को. Right. कुछ कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ नहीं होती. ठीक है ना, अगर हम कहें कि हम आइसोलेट होकर घर में बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता. वी हैव टू फेस द सोसाइटी. वहाँ के लिए अपने आप को फिट कैसे करना है, फिट कैसे करना है, तो उसमें अगर हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, अपनी प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अपना डाइट ले रहे हैं, एक मोटिवेशनल स्पीचेस सुन रहे हैं, एक लाइक माइंडेड पीपल के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, तो ये सब हमारे सिस्टम को आगे मूव आउट होने में हेल्प करता है. नो डाउट हेल्प करता है चीजें, क्योंकि हम सर्कमस्टांसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं. हमें ये बहुत एक क्लियर होना चाहिए माइंड में कि हम किसी सामने वाले को नहीं चेंज कर सकते. जो चेंज लाना है वो हमने अपने अंदर लाना है. ठीक है ना, और उसको करने के लिए हमें बहुत डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को मैनेज आउट करना चाहिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन हमें बहुत से फील्ड्स में हेल्प आउट करता है, बहुत सी मैनेजमेंट सिखाता है. और हर एक एपिसोड को, हर क्रिटिसिज्म को हमें देखना चाहिए कि ये क्रिटिसिज्म हमें कुछ और अच्छा करेगी. क्योंकि जब भी हम एक इमोशनल प्रॉब्लम में जाते हैं तो जो एक रिजल्टेंट निकल के आता है वो बहुत अच्छा आता है. जैसे कहते हैं ना कि एक पत्थर को, एक कोयले को जब बहुत हम शार्पन अप करते हैं तभी एक डायमंड बनता है. तो ये जो डिफिकल्टीज होती हैं एक इस यंगस्टर्स लाइफ में, ये हमें एक एक्सपीरियंस देती है और हमें पॉलिश आउट करती है बहुत अच्छे से. तो इसको हमें हमेशा पॉजिटिव आउटलुक से देखना चाहिए. हमारा माइंडसेट बहुत हमेशा सेट रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए कि किस तरह से हमें, ठीक है चैलेंजेस आए हैं हम उसको बेयर अप करेंगे, अपने जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. तो इस तरह से हम इस सिचुएशन को मैनेज आउट कर सकते हैं. How to make your obstacles your opportunities. यस. ओ, बहुत ही प्यारा आंसर था once again, and thank you so much. आप इस पूरे सेगमेंट पे इतने पेशेंट रहे हो, मैं तो बता नहीं सकती. Your patience, your grace, it is so commendable, and every थैंक्स. answer it added so much to our knowledge. It taught us a lot, and we are definitely going to try to implement it for sure. Right, guys? If not, then कोई नहीं, कोशिश करना, हाँ, क्योंकि कोशिश करना कि कोई भी एक कोशिश चेंज को क्रिएट करने के लिए एक दिन नहीं लगता. वी नीड सम टाइम. कोशिश लेकिन करनी. अब हम काफी बातें हो गई, काफी हमने सीरियस बातें भी कर ली, काफी कुछ सीख लिया. नाउ वी आर गोइंग टू प्ले अ लिटिल विद डॉक्टर. सो
for the fun segment, for the last segment of today's podcast, we are giving you two options. Okay? So, do you want a tongue twister or do you want a rapid fire? Okay, let's go with rapid fire only. Okay, so rapid fire game में what you have to do is, वैसे हमारी audience को पहले से पता है हम क्या कराते हैं, and but yeah, this is a surprise for Doctor definitely. तो क्या करना है आपको? I'll say a word, and उसके relation में जो भी word आपके दिमाग में सबसे पहले आए, you have to speak that out without thinking. ठीक है? Okay, So okay. are you ready for it? Yes. The first word is doctor. Doctor, my mother. Health. Lifestyle, Lifestyle. management, Okay. Family. most important. Profession. Doctor, Your journey. very good. And your daughter. She's my soul. She's energy for everything. Homeopathy. Genetic disorders, Genetics. homeopathy, Disorders. management, Emotions. emotions. Emotions, very important. Behavior. We can change it. Dr. Parul Sood. Just a normal person. That was so sweet, and that was a great rapid fire. Thank you so much for such a wonderful rapid fire, Doctor. A wonderful session today. Thank you so much for giving your time to us. मैं बता नहीं सकती मेरे को कितना अच्छा लग रहा है, guys. ये session मैंने बताया ना तुम्हें, मैंने एक साल पहले manifest किया था, and today it came to fruition. So the session went really, really well. This episode was a bang on, and anyone who watched it, इतना सा भी अगर देखा होगा ना, you are going to benefit from it for sure. But पूरा देखना, and don't forget to circulate this particular episode because ये सभी को बहुत benefit करने वाला है, not just youngsters. So make sure to spread it as much as you can to first of all implement जो doctor ने कहा है in your scenario. And with that, I hope you learned a lot from it. Doctor, I hope this episode was good for you. Yes, no doubt it gave me a platform to share my views with you all. And let me tell you once again, जो मैंने अभी तक बोला, thank you so much for being our guest of honor for today. मेरे लिए बहुत ही major चीज है, जितने भी लोगों ने सुना, they are going to benefit hugely from this episode. With that, what is Thank your you. last message to our youngsters? Last message is be persistent. जो भी कर रहे हो लाइफ में उसमें persistent रहो, क्योंकि वो एक कभी ना कभी रिजल्ट जरूर देगा आपको लाइफ में. Great. Persistence is the key to anything and everything. Yes. And thank you so much, Doctor. बहुत मजा आया आज आपके साथ सेशन में. मेरे को guys हर क्लिनिक विजिट में मुझे इतना अच्छा लगता था. I used to tell my mom कि मेरे को बस जाके डॉक्टर से बात करना है. आज वो प्लेटफॉर्म सबको मिला. ऐसी ऐसी चीजें हमें पता चली बायोलॉजी के अपने ही बॉडी के बारे में, अपनी एनाटॉमी के बारे में, मेडिकल के बारे में, मेडिकल वर्ल्ड के बारे में, डिसीजेस के बारे में जो शायद हमें यूजुअली नहीं पता चलती है, एंड जो हमारे लिए इतने रेलेवेंट है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए. Because मैंने कहीं सुना था कि इस लाइफ में the one good thing we can do is at least give ourselves a good disease free body. क्योंकि वही तभी हम एक अपर गोल को अचीव कर सकते हैं, और हम सबके कुछ ना कुछ अपर गोल्स रहते हैं. Right. Very, very true. And thank you so much, Doctor. बहुत मजा आया. And we really look forward to having you in Young Mind Things, in our live sessions, in our community meetups again and again. Thanks, Yashika. Thanks a lot. Thank you so much.